طالبات علوم نبویہ و طالبان علوم نبویہ، عزت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آپ الحاج مبارک حسین مبارک کو مکمل بیداری اور شوق اور ذوق میں سماعت کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا آپ کی سماعت کو دیکھ کر کہ آپ کا جسم عائشہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر سائے پر ہے اور آپ کی روح مدینہ المنورہ پہنچ چکی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کا یہی شوق اور ذوق ہونا چاہیے کہ جب وہ نعت نبی پڑھے یا سنے تو تصور میں گنبد خضرا ہونا چاہیے، اور مصطفیٰ دانی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مبارک حسین صاحب پڑھ رہے تھے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ سرکار نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی ان پر میری شفاعت واجب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی ایسا مومن نہیں ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہوگی کہ کاش ایک بار میں گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، اور حضور کے اس حدیث پاک کا مصداق ہو جاتا۔ ہر عاشق اپنی نمازوں میں دعا کرتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو لوگ اب تک مدینہ نہیں دیکھے ہیں ان سب کو مدینہ المنورہ کی زیارت کرا دے۔ آمین کہیے، آگے سے پیچھے تمام لوگ آمین کہیے۔ اس لیے کہ سب چاہتے ہوں گے کہ مدینہ شریف جائیں۔ تو حضرات، یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ آج عائشہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے بانی عمدۃ الحفاظ قاری خوش لحان بلبل باغ مدینہ حضرت قاری عثمان رضا صاحب قبلہ نے ان خطبہ اور اس شاعر کو آپ کے روبرو کیا ہے کہ جن کی تاریخ لینے کے لیے مہینوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر ان کی تاریخ میسر ہوتی ہے، مگر یہ مدینہ المنورہ کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور قاری عثمان صاحب نے اسی بہانے سے مبارک حسین مبارک جیسا شاعر کو آپ کے پریب نگر میں یہ کہہ کے بلایا کہ حضور آپ مدینہ جا رہے ہیں، اگر ہم لوگ مدینہ نہیں پہنچ سکے کم سے کم مدینے کے مسافر سے تو ملاقات ہو جائے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ یہ مدینے کے جو زائرین ہیں، مسافر ہیں، وہ آپ تک پہنچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے محبوب کے عشق سے لبریز فرمائے۔ کچھ دیر مجھے برداشت کریں، پھر اس لیے کہ آپ کے سامنے مبارک حسین مبارک جیسا عظیم لہجہ اور سوز و گداز کی آگ جو دلوں میں لگا دے وہ شاعر پھر آپ کے روبرو ہونے والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زینا نبینا بحبیبہ المصطفیٰ ومنّا علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی نبیہ خیر الورى وعلی آلہ واصحابہ النجباء الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت،
پیکر نور ہدایت، عرش کرسی کا وقار، لوح و قلم کی عظمت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، شام کائنات کے بدر الدجا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، سید عربی روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں تو ہمارے دل و دماغ اور ہمارے تصور پہ گنبد خضرا ہونا چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنہری جاری ہونی چاہیے۔ علامہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ اور صوفیان کرام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ نماز میں اتحیات میں حضور پر درود سلام پڑھتے تھے، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی، جب حضور پر سلام بھیجتے تھے تو اس وقت تک وہ حضور کی بارگاہ میں سلام نہیں بھیجتے تھے جب تک کہ اپنے دل و دماغ میں حضور کا تصور نہیں کر لیتے تھے، گنبد خضرا کا تصور نہیں کر لیتے تھے۔ گنبد خضرا کا تصور، سنہری جانی کا تصور، مصطفیٰ جان رحمت کا تصور، اور یہ سوچ کے سلام کہتے تھے کہ میں ہندوستان یا دنیا کے کسی کونے سے سلام پڑھتا ہوں اور میرا مصطفیٰ گنبد خضرا میں رہ کر میرے سلام کی آواز کو سنتے ہیں۔ سلام پڑھتے تھے تو اس جب وہ سلام پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ گنبد خضرا سے سلام کا جواب نہیں سن لیتے۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اس لیے کہ حضور گنبد خضرا میں ہے لیکن اپنے غلاموں کی آواز ساری دنیا سے ایک خطے سے کہیں سے بھی مسلمان جو اپنے نبی کو پکارتا ہے تو ہمارے نبی اپنے غلاموں کی آواز کو سنتے ہیں، ان کی پکار کو سنتے ہیں، اور کیوں نہ ہو اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان تو یہ تھی کہ مدینہ المنورہ ہے، اس شاقان مصطفیٰ میں سے ایک عاشق کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ جب اس عاشق کی روح قفس انصری سے پرواز ہوئی، مدینے میں ایک شور برپا ہو گیا، مدینے کے در و دیوار ماتم کرا ہے، مدینے کے محلے سوگوار ہے کہ آج جماعت صحابہ میں سے ایک صحابی کم ہو چکا ہے اور ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام چل رہا ہے۔ جنت البقیع میں وہ مقدس صحابی کا دفن ہونے والا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس اور مبارک صحابی کے جنازے کے ساتھ خود تشریف فرما ہے اور خود چل رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس صحابی کے جنازے کے ساتھ خود مصطفیٰ چل رہے ہوں، اس صحابی کے جنازے کا عالم کیا رہا ہوگا۔ جس پیغمبر اعظم خود وہاں تشریف فرما ہے، صحابی کا جنازہ دھوم سے اٹھا ہے۔ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر سے اس صحابی کے نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لیے کوئی مرد نہیں آیا ہو۔ یعنی مدینے کی گلیاں سوگوار ہے، مدینے کا شہر سوگوار ہے، مدینے کی فضائیں سوگوار ہے۔ مصطفیٰ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، نماز جنازہ ہوئی، پیغمبر اعظم جنت البقیع تشریف لے کر گئے۔ آپ اس مقدس صحابی کے جنازہ کو اپنے دست نبوت سے قبر انور میں رکھ رہے ہیں۔ صحابی تیری قسمت کے سلام، اور بہت سارے صحابہ تھے
जिन्होंने ये मंजर देखा था तो हर एक की तमन्ना थी, काश इसकी जगह पे मेरा जनाजा होता तो मुस्तफा का दस्ते नबूवत मेरे जनाजे को कब्र में रखता, इधर मुस्तफा के हाथ मेरे जनाजा पे लगते और उधर में जन्नत की सैर कर लिया होगा। दस्ते नबूवत के सर में हर सहाबी की आंखें अश्कबार है, हर सहाबी की तमन्नाएं दिल में मचल रही है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि मुस्तफा की निगाह का कमाल देखो कि पैगंबर कहां से कहां तक देखते हैं। जब उस सहाबी के जनाजा को मुस्तफा कब्र अनवर में रखा, ये तो मोमिन सहाबी है, लेकिन पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई ऐसी औरतें हैं और कई ऐसे मर्द हैं कि जिनकी कब्र में मुस्तफा खुद पहले लेटे हैं, बाद में फिर उन्हें लेटाए हैं। एक हज़रत अली की वालदा मोहतरमा है जिसका नाम फातिमा बिन्ते असद है। हज़रत फातिमा का जनाजा तैयार, लेकिन मुस्तफा पहले कब्र में लेटे और फिर फातिमा बिन्ते असद को मुस्तफा कब्र में रख रहे हैं। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इससे पहले तो आपने ऐसा कभी किया नहीं था, आज आपने क्यों किया? तो मेरे नबी ने फरमाया था कि ये अली की माँ है, अबू तालिब की बीवी है, मेरी माँ के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी पर मुझ पर एहसान है वो फातिमा बिन्ते असद का है। मैं इसलिए आज इनकी कब्र पे लेटा हूँ कि मेरे लेटने की वजह से अल्लाह ताला इसको कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। जो नबी कब्र में लेट जाए, अजाब कब्र से अल्लाह साहिब कब्र को महफूज रखे। उस सहाबी की किस्मत को सलाम। सहाबी तू कितना मुकद्दर का धनी है, सहाबी तेरी किस्मत ओढ़े सौरैया से बातें कर रही है। वो सहाबी का जनाजा मुस्तफा कब्र में रखते हैं, दफन होता है, पैगंबर आज़म जन्नतुल बकी से बाहर निकले, सहाबा दफन के बाद अपने अपने घर को जाने लगे। जब मुस्तफा अपने काशाना में दाखिल हो रहे हैं, हज़रत आयशा ने जब पैगंबर को आते हुए देखा तो आपने अपने सर पे दुपट्टा रख लिया। हज़रत आयशा ने जब सरकार हुजरे आयशा में दाखिल हुए तो हज़रत आयशा कभी सरकार की जुल्फों को मस कर रही है, कभी मुस्तफा का चेहरा देख रही है, कभी पैगंबर का कमीज़े मुबारक हाथ से लगा रही है, कभी मुस्तफा का दामन छू रही है। पैगंबर आज़म ने हज़रत आयशा के इस जनाब को देखा, सरकार ने फरमाया, आयशा तू मुस्तरिब क्यों है? तेरी आंखों का तजस्सुस बता रहा है कि आज तेरी निगाहों ने कोई हैरत अंगेज वाक़िया देखा है। हज़रत आयशा ने अर्ज किया, सरकार हाँ हाँ, आज मेरी निगाहों ने हैरत अंगेज वाक़िया देखा है। मैं कभी आपका दामन पकड़ती हूँ, कभी आपकी जुल्फों को मस करती हूँ, कभी आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करती हूँ। हुजूर ने फरमाया, आयशा वजह क्या है? हज़रत आयशा ने अर्ज किया, सरकार इसकी वजह क्या है? जब आप जन्नतुल बकी से निकले, जब मेरी निगाह ने आपको देखा तो मैंने ये देखा आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है, मदीने की गलियां पानी से जलथल हो चुकी है, मदीने की जमीन सैराब हो चुकी है, मदीने के नदी और नाले से पानी की नहरें जारी है। लेकिन सरकार आपको मैंने देखा, आप उसी बारिश आग में आपकी भीगते हुए आ रहे हैं, आपकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे हैं, आप पानी में सारा शराबेर हो चुके हैं। लेकिन एक प्यारे आका, जब आप मेरे करीब हुए तो मेरी निगाह ने आपको देखा कि ना आपके सर से पानी का कतरा टपक रहा है, ना आपके लिबास से पानी के कतरे टपक रहे हैं, ना आपके बदले नाश पे बारिश का कोई असर है। सरकार हैरत की इंतहा न रही, पैर तले से जमीन खिसक गई कि मेरी आंखों ने देखा, इतनी
حضرت عائشہ نے عرض کیا سرکار ہاں جب آپ آ رہے تھے تو آپ کی یمنی چادر میرے پاس رکھی تھی تو جلد بازی میں مجھے اپنا دوپٹہ نہیں ملا تو آپ کی یمنی چادر جس کو آپ کے جسم سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے اس چادر تطہیر کو اس چادر مبارکہ کو میں نے اپنے سر پہ رکھ لیا ہے تو حضور نے فرمایا عائشہ سنو تمہاری نگاہ نے جو کچھ دیکھا ہے کہ تمہاری ماتھے کی نگاہ کا کمال نہیں بلکہ اس چادر رحمت کا کمال ہے جب میں آ رہا تھا تیری آنکھوں نے دیکھا کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے بادل سے برسنے والا پانی مدینے کی گلیوں کو سیراب کر رہا ہے جو اے عائشہ جو تیری نگاہوں نے دیکھا تھا کہ بارش ہو رہی ہے یہ کوئی آسمان کا پانی نہیں تھا یہ کوئی بادل کا پانی نہیں تھا عائشہ یہ وہ پانی تھا کہ جب میں جنت البقیع سے آ رہا تھا میرے اس مقدس صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے نکلا تھا اس کو میں نے دستے نبوت سے جنت البقیع میں دفن کیا اے عائشہ یہ اسی صحابی پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی تھی تم نے اسی بارش کو دیکھا ہے وہ آسمان سے برستا ہوا پانی نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت کا پانی ہے اور اے عائشہ یہ تیری نگاہ کا کمال نہیں یہ میرے چادر کی برکت ہے جس کو تو نے ماتھے پہ رکھا تو تیری نگاہ کی طاقت کا یہ کمال ہو گیا کہ اللہ کی رحمت کا پانی تجھے نظر آ رہا ہے ارے جو عائشہ اگر مصطفیٰ کے جسم سے چادر مصطفیٰ مس ہو جائے اور عائشہ اس چادر کو اپنے سر پہ رکھ لے تو عائشہ کو رحمت خدا بندی پر برسنے والا پانی نظر آ جائے تو جس کشف مصطفیٰ نے ذات خدا کو دیکھا ہو وہ نگاہ مصطفیٰ کا اور کیا ہو کی بارش جس پیغمبر کی ذات پر 24 گھنٹے جھماجھم برس رہی ہو اور جس مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے ذات خدا بندی کا دیدار کیا ہو تو اس مصطفیٰ کی آنکھ سے ہم اور آپ کیسے چھپا ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ہم اور آپ کو مصطفیٰ زمین پر جیسا دیکھ رہے تھے آج زمین میں ہے مصطفیٰ ویسا ہمیں آج بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ جب زمین پر تھے مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے مصطفیٰ تب بھی ہمیں دیکھ رہے تھے آج زمین میں ہے تب بھی مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں کیا فکر ہونی چاہیے آج ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے ایک مصطفیٰ کے عاشق کی فکر اور ان کے ضمیر کی آواز کیا ہونا چاہیے ہم خدا کی نعمتوں کو اٹھا رہے ہیں ہم خدا کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا لیکن ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے زمین کا فرش بچھایا اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے آسمان کا شاگردہ نہ لگایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا بندہ تو اور کیوں نہیں کرتا میں نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا اگر یہ
तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पहाड़ों को बनाया, उसको पहाड़ों की मेखें बनाई ताकि ये जमीन हिलापन हो जाए। चारों तरफ से अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा कर दिया ताकि ये मजबूत पहाड़ों की वजह से जमीन हिल न सके। इंसान मकान बनाए तो जलजला का झटका मकान को गिरा न सके। इंसान मकान बनाए तो तेज आंधी मकान को गिरा न सके। और यही नहीं, वो खलक़नाकुम अज़वाजा, इंसान तू दुनिया में आया तो अल्लाह ने तुझे जोड़े जोड़े बनाया। आज वो रब है, एक ही पानी का कतरा है, वही पानी का कतरा एक औरत के रहम में जाता है, वही पानी का कतरा औरत के रहम में जाने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है बेटा अता फरमाता है, अल्लाह जिसको चाहता है बेटी अता फरमाता है। जरा तू गौर कर, पानी का कतरा वही है, रहम वही है, जगह वही है, खून वही है, ग़िज़ा वही है। तू भी रोटी खाता है, तेरी बीवी भी रोटी खाती है, हम भी ग़िज़ाएं वही खाते हैं, हमारी बहनें और माएँ भी ग़िज़ा वही खाती है, हम भी पानी वही पीते हैं, हमारी बहनें भी पानी वही पीता है। पानी वही, ग़िज़ाएं वही, अनाज और मेवे वही। लेकिन अल्लाह की शान कुदरत देखो कि अल्लाह ताला उसी ग़िज़ा से जो पानी हमारे जिस्म पैदा करता है, जो जज्बात और एहसासात के बाद जो पानी का कतरा मखसूस उसमें से निकलकर औरत के महसूल में हमें पहुंचता है, फिर उसी से अल्लाह एक खूबसूरत बच्चा पैदा फरमाता है। यानी जिसे चाहता है बेटा अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटी देता है। इंसान तू इसमें गौर क्यों नहीं करता अल्लाह की इस हिकमत पर कि अल्लाह ने तुम्हें जोड़े बनाया। अल्लाह चाहता तो सारी दुनिया को मर्दों से भर देता, अल्लाह चाहता तो सारी दुनिया को औरतों से भर देता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने आदमी भी बनाया, अल्लाह ने औरत भी बनाया, अल्लाह ने इंसान भी बनाया, अल्लाह ने लड़कों को भी बनाया, अल्लाह ने लड़कों को भी बनाया ताकि लड़का को आराम और सुकून पहुंचाने का जरिया एक लड़की बन जाए। जब इंसान सैफुल उम्र पर पहुंच जाए तो उसको सुकून पहुंचाने के लिए एक बीवी होना चाहिए। और यही नहीं, और आगे बढ़ो, अल्लाह कुरान में बताता है कि ए बंदा तू गौर क्यों नहीं करता, मैंने तुझे नींद जैसी नीमत से नवाजा है। ये नींद क्या है? आज तू 8 घंटे काम करके घर में आएगा, तेरी बीवी खाना पका के रखे, चाहे बेहतरीन किस्म का खाना हो, वो खाना खाने के बाद अगर इंसान को नींद नहीं आए, इंसान पागल हो जाएगा, उसका दिमाग पागल हो जाएगा, उसकी सोच पागल हो जाएगी। ये अल्लाह का करम है कि 8 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद हम पर नींद मुसल्लत करता है। जब हम सो जाते हैं और सो के उठते हैं तो हमारा पूरा जिस्म तरोताजा हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, ए बंदा तू गौर कर, जरा इस रात पे अल्लाह ने रात को सोने के लिए बनाया है, दिन को रोजी कराने का जरिया बनाया है। आज इंसान रात में सोता, रात में जागता
यही मोमिन की तमन्ना होनी चाहिए कि मौला तू रात को हमें जल्दी सुला दे और सुबह जल्दी उठा दे, ताकि जब तेरी रहमत का दरवाजा खुले और तेरी रहमतें जब जमीन पर उतरने लगे तो मेरे मौला हमारे घरों में तेरी रहमत की बारिश हो जाए। ये हमारी सोच होनी चाहिए। इन अल्लाह वालों ने क्या किया है, आज हम जश्न गौसे आज़म मनाते हैं। अल्लामा कारी उस्मान रज़ा ने अपनी कोशिश और मेहनत के बाद इस जलसे को सजाया है, सवारा है। इनका वजूद देखने में तो मुख्तसर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका हौसला अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया है। ये वो काम कर बैठते हैं कि जो काम अच्छे अच्छे जिस्म जसामत वाले नहीं कर पाते हैं, वो काम कारी उस्मान ने कर दिखाया है। कारी उस्मान ने अपने इस मुख्तसर वजूद के साथ एक अज़ीमुश्शान इदारा आयशा एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से आपके पूरे नगर में कायम किया है। इस इदारे में लड़कियां ज़ेवरे इल्म से आरास्ता और पैरास्ता हो रही है। आज इन्होंने जरूरत महसूस किया और आपको भी इनके कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, इसलिए कि आप दुनिया के हालात देख रहे हैं। आज दुनिया की संगीन हालात से गुजर रही है। आज हमारी बेटियों पे क्या क्या मुसीबतें आती है, आज हमारी माओ और बहनें किस किस मुसीबत से गुजर रही है। कहीं बुर्का पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। आज हमारे पास कोई ऐसा कॉलेज नहीं कि हमारी बेटियां अपने कॉलेज में पढ़ के इल्म हासिल करे, वो डॉक्टर बने, वो आलिमा फाजिला बने, वो प्रोफेसर बने, वो दुनिया और दीन की तालीम हासिल करके दुनिया के सामने मुस्तफा जाने रहमत के दीन का प्रचार करे। आज हमारे पास कोई कॉलेज नहीं, आज हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं। हमारा सेठ कभी ये नहीं चाहता कि हम बेटी और बेटे की शादी में 20 लाख खर्च न करके 2 लाख शादी में खर्च करके 18 लाख रुपए की हम कोई 18 लाख रुपए का कोई कॉलेज बना दे या कोई स्कूल बना दे, ताकि हमारी बेटियां गैरों के स्कूल में पढ़ने ना जाएगी, हमारे स्कूल में आएगी तो हिजाब पहन के आएगी, बुर्का पहन के आएगी, वो पर्दे में आएगी। गैरों के स्कूल में जाती है तो गैर हमलावर हो जाते हैं, लेकिन अपने स्कूल में जाएगी उसके हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं होगी, उनके बुर्का पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तब हमारा स्कूल होगा, हमारी यूनिवर्सिटी होगी, हमारा कॉलेज होगा, हमारे पास आयशा एजुकेशनल ट्रस्ट जैसा एक लड़की का मदरसा होगा। तो खुदा की कसम, हम तो अखबारों में देखते हैं, हम तो मोबाइल में देखते हैं, हम तो खबरों में देखते हैं कि फला जगह की मुस्लिम बेटी ने फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो कॉलेज में पढ़ने जाती थी, उसको भगाकर फला शहर में जाके उसके साथ निकाह कर लिया। फला जगह की बेटी ने फला गैर मुस्लिम के साथ शादी रचाई। ये सब क्यों होता है? आखिर हमारी बेटियां जब कॉलेज जाती है या हमारी बेटियां रास्ते और मार्केट में जाती है, वो दूसरों के साथ क्यों भाग जाती? इसकी वजह क्या है? उनके पास कुरान की तालीम नहीं है, उनके पास मुस्तफा की हदीस नहीं है, उनके पास पैगंबर आज़म का सरमान नहीं है, उनके पास हज़रत उम्मुल खैर फातिमा का किरदार नहीं है, उनके पास हज़रत गौसे आज़म की मां का किरदार नहीं है, उसके पास फातिमा जैसा किरदार नहीं है। काश अगर हमारी बेटियों के पास फातिमा जैसा किरदार हो जाता, हमारी बेटियों के पास अगर उम्मुल खैर जैसा किरदार होता। वो फातिमा थी नबी की बेटी, कि जिस फातिमा ने अपने हसनैन करीमैन को दूध भी पिलाया
नबी की बेटी फातिमा होती है तो फातिमा की गोद से पैदा होने वाला बेटा शहीदों का सरदार इमाम हुसैन होता है। और जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तो उस माँ की गोद से पैदा होने वाला बेटा गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी होता है। और जब माँ नवाजी होती है तो उस माँ नवाजी के गोद से जन्म लेने वाला बेटा दिल्ली का कूड़ा नजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही होता है। और जब माँ इबादत गुजार होती है तो इबादत गुजार माँ के गोद से पैदा होने वाला बेटा इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी होता है। जब माँ तहज्जुद गुजार होती है, जब माँ नमाज़ी होती है, जब माँ सबो सलात की पाबंद होती है, ऐसी माँ की गोद से पैदा होने वाला बेटा हम सभी है गौसे आज़म मुफ्ती आज़म मुस्तफा रज़ा खान होता है। और जब माँ तहज्जुद गुजार होती है, माँ नमाज़ी होती है, कुरान की आलिमा होती है, माँ मुफस्सिरा होती है, तो ऐसी गोद से पैदा होने वाला बेटा वक्त का ताज शरीया होता है। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाओ और आयशा एजुकेशनल ट्रस्ट में भेजो। तब हमारी बेटियां जाहिला होंगी, उन्हें पता नहीं है कि शिर्क क्या है, उन्हें पता नहीं है कुफ्र क्या है, उन्हें पता नहीं ईमान क्या है, उन्हें पता नहीं कि जन्नत कैसा महल है। उनके सामने जहन्नम का तसव्वुर नहीं, उनके सामने जहन्नम का खौफ नहीं। तब हमारी बेटियां कब्र का अज़ाब जानेगी नहीं, तब हमारी बेटियां जहन्नम का अज़ाब जानेगी नहीं, तब हमारी बेटियों की निगाहों के सामने जन्नत का हसीन नजारा नहीं होगा। तो वो बेटियां तो रास्ता छोड़ेगी, वो तो गैरों के साथ शादियां करेगी। उन्हें पता है हमें तो शादी कर लेना है, इसलिए जब हम शादी करेंगे गैरों से तो एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। उनके पास लग्जरी कार है, उनके पास अच्छा मकान है, उनके पास दौलत की रेंग पेल है, उनके पास एक अच्छा ओहदा है। हमारी बेटियां मजहब छोड़कर उन गैरों के साथ शादियां रचाती है। एक बेटी जब गैरों से शादी कर ले, बाबा नारे तकबीर, सवाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, याद मदीना कॉन्फ्रेंस, ज़ायरीने मदीना, ज़ायरीने मदीना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं हज़रात, बैठे बैठे। तशरीफ रखें, आप हज़रात तशरीफ रखें। खतीब शहीद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सरकार के तशरीफ ला चुके। उनके साथ साथ आपका हरदील अजीज शायर हज़रत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब भी तशरीफ ला चुके। मुख्तसर और मेरी गुफ्तगू सुनिए जरा आप और। अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि सुनो आज हमारी बेटियां क्योंकि अरबी का किरदार अपनाए हुए हैं, यानी हमारी बेटियां गैरों के साथ शादी रचाएं, हमारी बेटियां गैरों का मजहब कबूल कर ले, अपना मजहब बदल दे। क्या आपने कभी इस पॉइंट पे गौर किया आखिर वजह क्या है कि हमारी बेटियां मजहब बदल रही है? इसकी वजह यही है कि हमारी बेटियों के सामने कब्र का अज़ाब नहीं है, हमारी बेटियां जहन्नम का अज़ाब जानती नहीं, हमारी बेटियों ने कभी फातिमा का किरदार सुना नहीं। यानी बाप जाहिल, माँ जाहिला, खानदान जाहिल है और बेटियों को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक पैगंबर के पासियों आपके मोहल्ले में ये इदारा जो खुला है आयशा एजुकेशनल ट्रस्ट, ये लड़कियों का मदरसा है, इस
सकते। तो लोगों, हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को मदरसे में पढ़ाएं, इस्लाम की तालीम दें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाता है? आज भी इस मुख्तसर सी महफिल में जश्न मौत आखिर में बैठ कर ये सोचते हैं कि हम क्या हदीस शरीफ की महफिल में गए, अल्लामा शहाबुद्दीन का खिताब सुने, कारी मुबारक साहब की नगमा संजी को सुनने के बाद अपने दिलो दिमाग को मोहतर किए हमारे गुनाह की माफी के लिए। क्या यही काफी है? नहीं, अगर ये माफी ही काफी होगी तो तुम सहाबा से अच्छे नहीं हो। सहाबी मुस्तफा का चेहरा सुबह शाम देखा करते थे, पैगंबर के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे, मुस्तफा की इत्तिबा में नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन सहाबी का अकीदा देखो, अगर सहाबी से गुनाह होता था मुस्तफा की बारगाह में आते थे और कहते थे सरकार मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे सजा दीजिए, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे सजा दीजिए, सरकार मेरे गुनाह की माफी रब से कराके। यानी गुनाह सहाबी से अगर होता था मुस्तफा की बारगाह में माफी मांगने के लिए आता था, मुस्तफा अगर हाथ उठा देते थे तो अल्लाह मुस्तफा के दस्ते नबूवत के सामने उस सहाबी के गुनाह को माफ फरमा देता था। ये साधु का अकीदा था। आखिरी बात इसलिए कि मैंने अपनी तकरीर का जो उन्वान बनाया है, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। अभी मैं अपने उन्वान पर आया नहीं, मैं खुद देखता हूँ वक्त को मलहूज़े नजर रख के बोल रहा हूँ, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका। बस सुनिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर ऐ मुसलमानों, अगर तू कामयाबी चाहता है, अगर तू कामयाबी चाहता है तो तुझे सिद्ध दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना पड़ेगा। जब तू तौबा करेगा तो अल्लाह तुझे कामयाब कर देगा। अल्लाह कुरान पाक में मुस्तफा जाने रहमत हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, जो तौबा करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। दूसरे मकाम पर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला सम्माना, जो तौबा करता है गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। एक तौबा करने वाले की शान है। तो एक मुसलमानों, हमें अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करना चाहिए। रात के सन्नाटे में, दिन के उठाने में हमें अपने गुनाहों पर गौर करना चाहिए, फिर अल्लाह से तौबा करना चाहिए। आज का जो ये जलसा है, इस जलसे को तीन शख्सियत से निस्बत है। एक तो याद नबी कॉन्फ्रेंस मुस्तफा से निस्बत है ही, दूसरी शख्सियत है हुजूर गौसे आजम, हुजूर गौसे आजम का मकाम बहुत बुलंद वाला है। तीसरी शख्सियत है आशिक़े मुस्तफा, जानिसारे मुस्तफा, आशिक़े मुस्तफा हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन नज़वी किबला अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के जिस खादिम हुसैन नज़वी ने लब्बैक या रसूल अल्लाह की तहरीर के बानी है, पूरी दुनिया को बता दिया कि इश्क़े मुस्तफा क्या होता है। जिसके दिल में मुस्तफा के इश्क़ की आग होती है, तो दुनिया की ताकत उसको झुका सकती है, तो दुनिया की हुकूमत उसे झुका सकती है। उसके दिल में नहीं होता है कि जिस दिल में मुस्तफा का इश्क़ होता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। इसलिए ए लोगों, अल्लाह का जो फरमान है, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। मुसलमानों, अपने गुनाहों से तौबा करो अगर तुम कामयाबी चाहते हो। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, बगैर तौबा किए कुछ मिलने वाला नहीं है। ना कामयाब होगे, ना उरूज और इर्तिका की मंजिलें मिलेगी, ना किसी मनसब और अच्छे ओहदा पर फाइज हो सकते हो। आज हमारी सलामत और हमारे हाथ में जो सलामत हो रही है, इसकी वजह यही है कि हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते हैं। वरना मुसलमान जलील होने के लिए नहीं, अल्लाह को फरमाता है कि इज्जत वाले रसूल है, इज्जत वाले औलियाए कामिलीन है, और इज्जत अल्लाह ने मोमिनों को अता फरमाया है। तो ऐ मोमिनों, तुम इज्जतदार हो, अल्लाह ने तुम्हें इज्जतदार बनाया है। अगर हम जलील हो रहे हैं तो अपने फेरे पद की बुनियाद पर हमें अपने अफ़आल कबीहा और आमाल बद से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए। हुजूर पाक को वसीला बनाकर, गौसे आज़म को वसीला बनाकर, ताकि अल्लाह इन बुजुर्गाने दीन के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। और जब मुस्तफा के हाथ उठेंगे तो इंशाअल्लाह
قبول فرماتا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. وہی آج سے جب دعائے محمد اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے.